Welcome to Suman's Digital English Tutorials. It's Rajnikant Tiwari. I'm going to teach you today the second part of second lesson of 12th class UP board, A Fellow Traveler, penned by A.G. Gardiner. In the previous video lecture, I had taught that there's a pleasant sense of freedom while traveling alone in the compartment of a train. You can do what you like. You can stand on your head. You can dance a step or two. You can practice the stroke of golf, as well as you can play marbles on the floor, and nobody is there to stop you. You can even break the heart of DORA, Defense of Realm Act, and DORA herself will fail to notice you. Today, the second part of the lesson. On this night, I did not do any of these things. इस रात मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया. They did not happen to occur to me. उन कामों का जैसे मुझे ध्यान ही नहीं आया. What I did was much more ordinary. मैंने जो कुछ भी किया वह अति साधारण था. When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale remnants of the day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. तो A.G. गार्डनर ने कहा कि उस रात उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, या यूँ कहिए कि उनका ध्यान ही नहीं आया. उन्होंने जो किया वो बड़ा ही साधारण था. When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा आखिरी सहयात्री चला गया था, अर्थात जब A.G. गार्डनर का आखिरी सहयात्री चला गया था, तो I put down my newspaper, तो गार्डनर जी ने अपना पेपर नीचे रख दिया था. Stretched my arms and my legs, अपने हाथों और पैरों को फैलाया. कहने का अभिप्राय, A.G. गार्डनर ने अंगड़ाई लिया. Stood up, उठ खड़े हुए, and looked out of the window, और खिड़की से बाहर झांका. On the calm summer night, शांत ग्रीष्म ऋतु की उस रात में, through which जिससे होकर I was journeying, the gardener was journeying, गार्डनर जी यात्रा कर रहे थे. Noting the pale remnants of the day, दिन की स्मृति की पीली आभा को देखा. That still lingered, जो अब भी टिकी हुई थी. In the northern sky, उत्तरी आकाश में. Crossed the carriage, उन्होंने रेल के डिब्बे को पार किया. Looked out of the other window, दूसरी खिड़की से बाहर देखा. Lit a cigarette, एक सिगरेट जलाया. Sat down, बैठ गए, and began to read again, और दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया. तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब
उनका आखिरी सहयात्री चला गया तो उन्होंने पेपर को नीचे रखा, हाथों और पैरों को फैलाया अर्थात अंगड़ाई लिया, खड़े हुए, विंडो के बाहर देखा। उस ग्रीष्म ऋतु की रात में खिड़की से बाहर देखा, उस रात में जिस रात को वो यात्रा कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि दिन की स्मृति की पीली आभा जो अब भी उत्तरी आकाश में टिकी हुई थी। फिर उन्होंने डिब्बे को पार किया और दूसरी खिड़की के बाहर देखा, सिगरेट जलाया, बैठे और दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। It was then that I became aware of my fellow traveler. तब जाकर वे अपने सहयात्री से संज्ञानित हुए। तब उन्हें अपने सहयात्री के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। He came and sat on my nose. एजी गार्डनर जी बता रहे हैं कि वह आया और मेरी नाक पे बैठ गया। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call vaguely mosquitoes. वह सहयात्री उन पंखों वाले, डंक वाले नीडर कीड़ों में से एक था जिसे हम संदिग्ध रूप से मच्छर कह के बुलाते हैं। I flicked him off my nose and he made a tour of compartment, investigating its 3 dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. I flicked him off my nose. मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ाया और he made a tour of compartment. उसने डिब्बे का एक चक्कर लगाया, investigated its 3 dimensions. इसकी तीनों विमाओं की जांच किया। तीनों विमाओं से अभिप्राय लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से है। तो उसने डिब्बे की, रेलगाड़ी के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जांच किया। विजिटेड ईच विंडो, हर प्रत्येक खिड़की पर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, प्रकाश स्रोत के परितः फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, और निश्चय किया कि देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कोई भी चीज इतनी रुचिकर नहीं थी जितना कि वह विशाल प्राणी कोने में बैठा हुआ। और उसने निश्चय किया कि कोने में बैठे विशाल प्राणी से अधिक रुचिकर कोई भी चीज़ नहीं थी। He came and had a look at my neck. वह आया और उसने मेरी गर्दन का निरीक्षण किया। I flicked him off again. मैंने उसे दोबारा उड़ाया। He skipped away. वह उछलकर दूर चला गया। Took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. वह स्किप कर गया, वह दूर चला गया। उसने डिब्बे का दूसरा चक्कर लगाया। जॉन्ट राउंड का अभिप्राय है कि मनोरंजन के लिए जो कार्य किया जाए,
उसे जॉन्ट कहते हैं। तो वह उछलकर भाग गया और मनोरंजन के लिए उसने डिब्बे का दूसरा चक्कर लगाया, लौटा और खुद को बिठाया। सीटेड हिमसेल्फ, खुद को बिठाया। इम्पुडेंटली, धृष्टतापूर्वक। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे की ओर। तो एजी गार्डनर का कहना है कि उन्होंने उसे दोबारा उड़ाया, वह उछलकर दूर चला गया और मनोरंजन के लिए उसने डिब्बे का दूसरा चक्कर लगाया, लौटकर आया और स्वयं को धृष्टतापूर्वक एजी गार्डनर के हाथ के पीछे की ओर अपने को बैठा लिया। It was enough, I said. Magnanimity has its limit. मैंने कहा बहुत हो चुका। उदारता की अपनी सीमाएं होती हैं। Twice you have been warned that I am someone in particular, that my august person resents on the tickling impertinence of strangers. तुम 2 बार चिताए जा चुके हो कि मैं अपने आप में विशेष व्यक्ति हूं और मेरा उच्च व्यक्तित्व अजनबी के गुदगुदाती धृष्टता पर रुष्ट होता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूं। कहने का अभिप्राय यह है कि मैं जज का कार्य करना शुरू करता हूं, न्यायाधीश का कार्य करना शुरू करता हूं। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट एंड कोर्ट्स अवार्ड इट, न्याय की यही मांग है और न्यायालय इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध अपराध तो अनेक हैं। यू आर ए वैग्रेंट, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, यू हैव नो मीट कूपन। तुम एक आवारा हो, तुम एक सार्वजनिक उपद्रवी हो, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं है। तो उस मच्छर के प्रति न्यायाधीश महोदय ने जो अपराध बताए उनमें उसे आवारा बताया, उसे सबको परेशान करने वाला बताया, बिना टिकट यात्रा करने वाला बताया और ये भी बताया कि तुम खून तो सबका चूसते हो लेकिन तुमने मीट कूपन लिया नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमिनियर्स यू आर अबाउट टू डाई। फॉर दीज, इन सब के लिए और बहुत से दूसरे असंवैधानिक कार्यों के लिए, अनलॉफुल वर्क्स, मिसडेमिनियर्स, अनलॉफुल वर्क्स, तो इनके लिए और बहुत से दूसरे असंवैधानिक कार्यों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, तुम्हारी मृत्यु सन्निकट है, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ से एक तीव्र और घातक प्रहार किया। He dodged the attack with an insolent ease that humiliated me.
वह आक्रमण से बड़े ही आसानी से बच निकला, अथवा उसने चकमा दे दिया। दैट, जिस प्रक्रिया ने ह्यूमिलिएटेड द ऑथर, लेखक महोदय को अपमानित जैसा किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत क्रोध उग्र हो गया। I lunged at him with my hand, with my paper. I jumped on the seat and pursued him round the lap. I adopted tactics of feline cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness. मैंने उस पर हाथ से आक्रमण किया, अखबार से आक्रमण किया, अपनी सीट पर कूदा, उसका प्रकाश स्रोत के परितः पीछा किया। मैंने बिल्ली के चातुर्य की तकनीकें भी अख्तियार की, अपनाई। उसके उतरने तक प्रतीक्षा किया और फिर भयानक चुपके से और अचानक और भयानक तेजी से उस पर प्रहार किया। It was all for today. I think you might have understood. Thank you.